Here, ma'am. Right side, all of you. Okay, so I'm going to begin by reading out a few lines, just 4 lines from the book. And they go like this. Always, there's always a possibility if there's imagination, yes. And I think, and Ronnie does too, that no one does the imagination dance better than you. Yeah? So, the best gift that we can give our children is just stay out of the way and let them do the imagination dance. And the best way that you can nurture imagination in children is to urge them to read, urge them to read. So all the parents out there, this is for all of you who are recording us, I urge you all to urge your children between the age groups of 3 and 6, to definitely take this book up and read it this week. It's a book called What Elephants Speak Read by everybody they go. Right? And illustrated by Rupa Yogi. Congratulations. And on this occasion, we are so delighted, Lal Kakkarji, to have you here. She told me how long she's known you and what you mean to her. So on her behalf, on our behalf, thank you very much for being here. And thank you, Divya Datta, for joining us here on this occasion. She told me how much you mean to her. And it really means a lot that you clicked and outlined us. Thank you very much. Would you all like to clap for this outstanding action and dear friend? I'm going to request you all to now step forward and do the honors with the book, Why Can't Elephants Be Read? But that will be incomplete. My little friends. Of course, I'm going to call them. I'm going to call them. So all the little friends who are little people, come join us. Part of this journey, step forward. Radhika, Gira, Devika, all of you come. Come. Me too, And maybe have books. Wait, we all launched the book together, right? Hello. Keep this asking you something. Have you seen an elephant in a doggy bag? No? No. See how well he is it? That's you both. That And you know what you have to do, right? Just have to you pull both. the bow, open the bow, All of you and together. point it towards the Dashi Kaka. Sunil. Come, all of you. Okay, so. Oh, you can take it. And after that, you don't want your thumbs in the bowl as well. Yes. Super. And Now, you open it up. unwrap it now. We unwrap the book for 3, 2, 1. And this is why elephants can't be read. Okay, so can we all hold it up now with the title? All right. I'm really done. Should I help you? Are you done, Auntie? Okay, our friends from the press, the electronic media, now you can give away. This is your opportunity. Now Okay, let's so I can hold your books like straight towards the camera. come closer, come closer. Come closer. Come. Say cheese! Smile! Look here, Sandan. I fell on my head when I was very young. And I suffered. So, professionally, I was always called the Air Force lady who never grew up. There is a north. We can't hear you. There is a north, and the fact that when you find your north, you will never lose your way home. Same. So the only thing that children really need to fight for their life with the help of their parents is that everybody knows it. Everybody's way home is different. Everybody's way to safety is different. Otherwise, there is a lot to learn from children. Faster, yes. And don't supervise them. Don't do helicoptering with them. You know, we got the helicopter mom and they are constantly trying to supervise and make out what they do. Okay.
Divya, you know, when I heard that she's written this book and I read the title, I mean, to me, always she's been this tiny woman, you know, with big bright eyes and infectious smile and a beautiful mind and a beating heart. But I think this surprised me. Did it surprise you? And of course, I want you also to share your thoughts with us on the position. Very good evening, everyone. First of all, heartiest congratulations, Bani. I think the friendships that are rooted in the beginnings of your life, whatever part or whatever phase of life that you are the strongest ones. And I think that's what I share with her. And I think she's always had this amazing sense of imagination. And she's always gone beyond the boundaries. And that's what I'm not surprised with this one. So, I just read this chapter and trying to read the entire book. But thank you for bringing this child in me back. And thank you for letting me just be in the shoes of Aku for just a second. But lovely and beautiful. So sweet, हमको लाइफ लगा I'm going to hijack this space and ask Manu to sign mine. What did you think of it? What is she saying? Why मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगी कि जो दोस्तियाँ आई थिंक आपकी शुरुआत में होती हैं वो बहुत लंबी चलती हैं और वाणी के साथ मेरी वो दोस्ती रही है। और ये जो किताब उन्होंने लिखी है बच्चों अक्कू के तरफ से जो उनकी बेटी है और बच्चों के लिए, मुझे लगता है हम सबके लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है क्योंकि हम शायद अपना अंदर का बच्चा कहीं खो देते हैं। सो द चाइल्ड इन अस हू सो वाइल्ड विद इमेजिनेशन, हर एक इंसान अलग है, हर एक बच्चा अलग है, तो उन्हें उसी तरह से बढ़ते रहने का हक हमें देना चाहिए। और ख़ुद भी मुझे लगता है कि ये नहीं सोच लेना चाहिए कि हम लिमिटेड हो गए हैं क्योंकि हम बड़े हैं। सो जस्ट दैट पावर टू गो बियॉन्ड, आई थिंक दिस बुक इज़ ऑल अबाउट दैट और मुझे बहुत अच्छी लगी एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं इस प्यारी सी किताब का एक चैप्टर पढ़ पाई। जी, मैंने मासूम भी सवाल पूछे हैं और आई थिंक कुछ स्मार्ट सवाल भी पूछे हैं, कुछ बेवकूफ़ भी पूछे हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है, वो हर चीज़ का जवाब देगी। और आई थिंक हम ताउम्र सीखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि बचपन में ही सवाल हैं, अभी भी कितने सवाल हैं और ये किताब पढ़ के और सवाल होंगे और ऐसा होगा कि हम ऐसे क्यों नहीं हैं। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपन एंड बट यस, माँ माँ होती है एंड वो आपके हर उस क्यूरियोसिटी का जवाब देती है और बहुत खूबसूरती से देती है। बिल्कुल, लेकिन क्या होता है कि हम हर चीज़ मेकर्स पे नहीं डाल सकते। ऑडियंस से भी गुजारिश करना चाहूँगी कि बच्चों की फिल्में और देखें। मैंने खुद की हैं और मैंने स्टैनली का डब्बा जब की थी तो मैंने एक हाउसफुल शो देखा है जहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट मैंने गिप्पी की है करण जौहर की। तो ये सब बच्चों की फिल्में रही हैं, तो कुछ को बहुत स्नेह मिलता है, कुछ शायद उतनी बड़ी मार्केट नहीं पा पाती। तो लेकिन हमारे लिए जो इस बार ऑस्कर्स की जो नॉमिनेशन गई थी वो खुद एक बच्चों की फिल्म थी और बड़ी प्यारी फिल्म थी। तो ऑफ कोर्स मैं ये फिल्में हैं और बहुत लोगों के पास कहानियाँ हैं कहने की, लेकिन ऑडियंस से गुजारिश करना चाहूँगी कि इसे अच्छी ऑडियंस भी दें। जी, शुक्रिया। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई, मेरे टीचर्स, उन सब लोगों ने जिन्होंने मुझे जीवन में बहुत कुछ सिखाया, चाहे वो रंगमंच में हो या सिनेमा में। मेरे बड़े भाई सुधीर मिश्रा जी मेरे साथ बैठे हैं। इन सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और इस किताब के लिए मुबारकबाद देने के लिए आज यहाँ जुटे हैं। और दिल्ली में भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के मेरे गुरु, उन लोगों के साथ जिन्होंने मैंने जिनके साथ जीवन गुजारा था,
किताब के माध्यम से एक विषय मैं प्रतिपादित करना चाहती हूँ, और वो ये है कि हम रियलिस्टिक राइटिंग से बचते हैं जब हम बच्चों के लिए लिखते हैं। या तो हम सब कुछ बहुत कल्पनाशील रखते हैं, फैंटेसी, राजा रानी की कहानियाँ, राजकुमारी, परी कथाएँ, लेकिन इन सब का बच्चों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत कम संबंध होता है। तो मुझे लगता है कि ये किताब एक प्रयास है रियलिस्टिक राइटिंग का, क्योंकि इसकी प्रोटैगनिस्ट मेरी अपनी बेटी है 2.5 साल की अक्षरा, जिसको हम प्यार से अक्कू बुलाते हैं, और उसका अपना जो वर्ल्ड व्यू है बड़े लोगों को देखने का, जिस तरह से वो लोगों को देखती है, जिस तरह वो जीवन देखती है, और पैंडेमिक में जिस तरह 2 साल बच्चे लॉकडाउन में रहे, परिवारों के साथ रहे, वो खेल कूद के मैदान जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एकदम से पहली हकीकत होते हैं, जब वो ख़त्म हो गए, जब वो स्कूल नहीं जा पाए, तो उनकी ज़िंदगियाँ कैसे रही। तो कहीं ना कहीं मेरा मतलब यही था, वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड, ये भी कि बच्चों की कल्पनाशील जो शक्ति होती है उसको हम पूरा दबाने का प्रयास करते हैं। और एक नाटक मैंने किया था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय थिएटर एंड एजुकेशन कंपनी के साथ, जिसका नाम लाल लाल हाथी था, जिसमें मैं उस भूमिका में थी। तो ये टाइटल कहीं ना कहीं उसी से इंस्पायर्ड है, प्रेरित है, वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड। आई एम हियर स्पेसिफिकली for Vani. I was in Delhi also when she launched it and I had to be here because she's a great friend, and it's a wonderful idea on which she's written the book. I've read parts of it, parts are wonderful. But for Vani I had to do this. I was there in Delhi also for the launch and I had to be here. And I wish her all the best, and I wish Akshara all the best. Yeah, it's, you see, the title of the book tells you a lot about what the book is about. You know, it's a great title. You know, why can't elephants be red? So from a child's point of view, that's a great thing. Because like she said, you know, in her characters, somebody says my elephant is blue, somebody says mine is yellow. Then these are stories that kids make up. And I think it's a wonderful thing to promote that kind of thing, and I wish there are more children's books like what Vani's done. No, very important. हमें एक सही कह रही है वानी की, जब हम बच्चों के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू टॉक डाउन टू देम, आओ बोलो बच्चे तुमको एक कहानी सुनाओ। सो आपको हमेशा लगता है कि वो तैयार नहीं है कुछ, अगर वो कहीं ऐसा कुछ देखने, ज़िंदगी का यथार्थ से वाकिफ न हो जाए। लेकिन बच्चे होते रहते हैं, यथार्थ चारों तरफ है। तो अगर बच्चों के साथ थोड़ा एज नॉट कॉन्डिसेंडिंगली, आफ्टर ऑल बच्चे हैं, लेकिन आप अगर उनसे बातें करें 1 to 1 तो वो बहुत अच्छा है। और आप एक निदा साहब की लाइन है ना, कविता पहली भूल रहा हूँ मैं, कि बच्चों उनको बच्चे रहने दो, 4 किताबें पढ़ के वो हम जैसे हो जाएंगे, ऐसा कुछ एक है। तो हम कुछ हमेशा उनको ढालना चाहते हैं, अपने जैसे अपना जैसा बनाना चाहते हैं। तो वो उनको जो डिस्कवरी, एक एक्साइटमेंट, एक जिज्ञासा, एक दुनिया को देखने का नज़रिया, मतलब मेरे ख्याल से वो आपको सबक सिखाते हैं। और अगर हम सब थोड़ा बहुत वो रहें बच्चे, ज़िंदगी को सिर्फ क्यों हाथी लाल क्यों नहीं हो सकते, अगर हम सोचें ऐसा, तो वो हमें भी थोड़ा सा ज़िंदगी में मदद करेगा। नहीं तो हम भी ढर्रे में फंसते हैं, वो जिज्ञासा हम खोते जा रहे हैं। तो बच्चों के साथ साथ आप भी सीखेंगे मेरे ख्याल से। हर चीज़ की मेरे ख्याल से फिल्म बनाई जाए ऐसा ज़रूरी नहीं। मेरे ख्याल से जो इमेजिनेशन है, ये जो शब्दों की दुनिया है, ये जो किताबों की दुनिया है, अगर उससे हर बच्चे का एक अपना इमेजिनेशन, उस कहानी से खुद इमेजिन करता है, वो पात्रों को खुद अपना, फिल्म थोड़ा कॉन्क्रिटाइज कर देती है हर चीज़ को। तो थोड़ा बहुत कुछ किताबों को किताबें ही रहने दें, कुछ हर चीज़ को आप कैनिबलाइज इंडस्ट्री क्यों करना चाहते हैं। एक बार क्या होता है, फिल्म बन जाती है तो किताब भूल जाते हैं लोग, है ना। तो वो मेरे ख्याल ज़रूरी नहीं है। अब बनाए कोई एक साइट हो जनरली उससे, और बनाए तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अब उसको किताब को थोड़ी देर किताब रहने देना चाहिए। उससे थोड़ा इमेजिनेशन ज़्यादा, आप खुद इमेजिन करते हो। एक एक्टिव रीडिंग जो है ना, वो एक एक्टिव है चीज़, व्यूइंग जो है वो थोड़ा पैसिव है। तो थोड़ा वो मेरे ख्याल से शुरू में तो वो बंदिश तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन पहले 6-7 साल अगर बच्चे सिर्फ पढ़ें तो मेरे ख्याल से बेटर है, मेरे ख्याल से।
लेकिन आप रोक नहीं सकते अब, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि बंदिश है। यार मैं खुद एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ और मैं बड़ा खुश हो गया जब वानी ने मुझे बताया कि उसकी किताब किस बारे में, कि हम अपने से छोटों को कितना कम जानते हैं। हम ये जानते हैं कि वो हम उसको जो चाहते हैं उसके कितना आसपास है। हमारी बच्चों से हमेशा एक तवक्को होती है कि मेरा बच्चा ऐसा हो, और फिर हम उसको घसीट के वहाँ से वहाँ लाते रहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हम इस बात पे कभी गौर नहीं करते कि वो कौन है, और उसको हम आज़ादी से बड़ा नहीं होने देते। इसलिए इतना ज़रूरी है कि हमसे जो छोटे हैं उनके सवाल सुने जाएं, उनका उत्तर दिया जाए, बजाय इसके कि हम उनको ये बताएं कि तुम क्या बनो, क्योंकि तय वो करेंगे, उन्हें करना चाहिए कि वो क्या बनेंगे, और वो नई दुनिया है और जिसमें हम हिंड्रेंस हैं एक्चुअली। जब हम उनको बताते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा नहीं किया, वो तो दिखाई दे रहा है दुनिया में तो इससे अच्छा ये है कि वो तय करेंगे क्या करना है, और हम जितनी बेहतर दुनिया उनके लिए और बना के रख सकते हैं वो रखें। लेकिन इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू आस्क कि हाँ, हाथी लाल क्यों नहीं हो सकते। यार मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है पूरी किताब, लेकिन फिल्मों को हम बहुत ज़्यादा हैसियत देते हैं। मुझे नहीं लगता कि किताब पे फिल्म बने तो उससे किताब की इज़्ज़त बढ़ती है। मतलब आप जो गॉडफादर जितने लोगों ने देखी है और जिन्होंने पढ़ी भी है, आप पूछें उनसे तो उन्हें किताब बेहतर लगती है, जबकि वो फिल्म अपने आप में एक अपनी खुद अपने आप में बाइबल है। पर मुझे नहीं लगता कि उस किसी किताब को फिल्म में कन्वर्ट कर देने से वो वैलिडेट हो जाती है या उसकी वैल्यू इम्प्रूव होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और किताब लिखी गई और किताब में पढ़ी जाए और बच्चों से शुरुआत हो, बच्चों में आदत पड़ेगी किताब पढ़ें, उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। फिल्म तो मोहताज है किताब की, फिल्म साहित्य की मोहताज है। किताब का इनोसेंस जो है उसको, मतलब जो पेजेस अभी पढ़ेंगे, मतलब बाकी चीज़ें पढ़ूँगा कि मुझे ही पढ़ना है, क्योंकि वो थोड़ा सा इनोसेंस जो है ना अभी कई जगह मिल नहीं पाता है लोगों को। और जो वानी ने किया है और जो लिखा हुआ है ना, मुझे लग रहा है बहुत टच करेगा, और ये दोनों के लिए ही है, मतलब पेरेंट्स के लिए भी है और जो है बच्चों के लिए भी है। तो उसके हिसाब से बहुत कुछ लर्निंग प्रोसेस है। मुझे लगता है इनोसेंस होना, जिस तरीके से लोग चाहते हैं हमारा बच्चा प्यारा हो, तो माँ बाप को भी प्यारा होना चाहिए ना उसके लिए। आप सारी अच्छी बातें चाहते हैं, औलाद अच्छी करे और आप ना कहें तो नहीं सकता। तो मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज़ है इस किताब में, शायद उसे पढ़ने के बाद जब मैं पढ़ूंगा तो पता लगेगा कि हाँ, कुछ मासूमियत हमें भी होनी चाहिए, मासूम बनाने वालों के लिए ऐसा है। जी, बिल्कुल भाई, क्या है कि वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चों का जो एक सेगमेंट है बहुत एक्शन ड्रिवन हो गया है। आप समझ रहे हैं, जैसे काफ़ी चीज़ें अगर आप देखिए शुरू से लेकर एंड तक, तो एक बच्चा सुबह से ढेर सारा एक्शन देख रहा होता है। वो मतलब एक्शन भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है, पर ऐसा कुछ बहुत कुछ जो है पढ़ने लिखने में और अलग अलग भाषाओं में होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो है मलयालम में कुछ काफ़ी चीज़ें मुझे मैंने ट्रांसलेशन में पढ़ी थी, वो बड़ा अच्छा कुछ है बच्चों के लिए वो करते हैं लिखने के लिए। और यहाँ यही ये सब कहानियाँ भी नहीं रह गई, वो आईपैड ने आके ना सब कुछ बर्बाद कर रखा है। तो हाँ जो है ना, सच में ये एक बच्चा आप देखिए, घर जाइए, उसका बेसिक ब्लैकमेलिंग जो उसका मतलब है, वो आईपैड या आईफोन जो फ़ोन होता है वो लिए रहते हैं वो लोग। तो वो हटा के ये पढ़ना लिखना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। ऐसी कहानियाँ और लिखें लोग, और पढ़ाई जाए, मतलब कुछ करके पढ़ाई जाए, तभी अच्छा होगा।